Hello everyone, welcome back to the YouTube channel of Agri Addict. So today we are going to discuss our A to Z information about your ICR PG exam for the subject group of agronomy. So this video will be your one-stop solution if you are preparing for the agronomy for your 2025, 2026 as well as for the upcoming years. So you need not to worry about what books we should be following, what should be our strategy. You don't have to rely or you search on the different resources. This will be your one-stop solution for you guys. So before starting, let me introduce myself. I am your mentor Nikhil. I have done undergraduation from the CSK Himachal Pradesh Agriculture University Palampur, and recently in the previous year I have also given ICR PG examination for the subject group of agronomy, and I have secured All India 22nd rank with 247 marks in the agronomy subject. So I think I can better assist you and guide you. Okay. So in this video, we will be discussing about the exam pattern, your whole syllabus, your number of students who are writing the exams, and what should be your strategy to crack this exam. Okay. So before starting with our exam pattern, let me just tell you that if you are looking for a potential course which can help you in your preparation, so at the end of this video, I will be revealing a special coupon code for which you can avail a maximum discount for the course your Agri Addict is providing. We will just talk about the course at the end of this video. Okay, so starting with the mode of examination. तो जो आपकी एग्जामिनेशन है डेट विल बी इन द कंप्यूटर बेस्ड मोड. ओके, तो कंप्यूटर में जो आपका टेस्ट लिया जाएगा और इसमें जो ड्यूरेशन रहेगी डेट विल बी अराउंड 2 आवर्स. तो 2 आवर्स की आपकी ड्यूरेशन रहेगी, डेट इज और 120 मिनट्स. एंड जो इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे डेट इज 120. और एक क्वेश्चन जो आपका होगा वो 4 मार्क्स का होगा. ठीक है, तो आपके 120 क्वेश्चंस में यू विल बी गेटिंग योर 480 मार्क्स. तो आपका टोटल पेपर will be from 480 marks. Okay, and plus 4 marks will be for the correct response, and if you having an incorrect response, so there is negative marking also. तो नेगेटिव मार्किंग में आपका 1 मार्क्स कट जाएगा. ठीक है, और अगर आपने अटेम्प्ट नहीं किया है तो यू विल बी अवॉर्डेड विद 0 मार्क्स. ऑल्सो द मीडियम पेपर, मोस्टली बच्चे यहाँ भी कंफ्यूज होते हैं और उनका डाउट भी यही रहता है कि सर मीडियम ऑफ पेपर इसमें हिंदी भी होगा, इंग्लिश भी होगा, इट विल बी बाइलैंग्वेज और व्हाट. So let me clear you here. Medium of paper will be strictly in English only. Okay, तो ICR PG का आपका strictly in English है, लेकिन if you are just giving your CUET PG जिसकी नोटिफिकेशन आ चुकी है, तो उसका जो आपका मीडियम है that will be both in Hindi and English. Okay, so CUET PG in Hindi and English both, and your ICR is strictly in English. So you have to just take a note here. So that will be your exam pattern. Next is the eligibility. What degree you should have to give this exam. तो for this for your state agriculture universities है ना, तो उसके लिए जो आपकी डिग्री होगी that will be your BSc agriculture, BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर for your agronomy. और otherwise actually this is your 4 years degree. Okay, but if you have haven't covered in this 4 years, you are having 3 year degree, then you will be having the alternate eligibility. This is not for your state agriculture universities. This will be specifically for your hubs like your IRI, your NDRI. Okay, so you will be having BSc agriculture for the alternate eligibility, BSc agriculture ons, BSc agriculture and animal husbandry. So this will be applicable at your NDRI as per the information brochure for your ICR PG exam. Okay, and I think most of the students having this BSc agriculture and BSc honors agriculture, so you will be eligible. Next, now you are giving this exam, so you are very curious to know that how many students write this exam है ना. तो this is the official data of year 2024. तो आपकी जो टोटल सीट्स हैं that is 277. This is your ICR PG seats. This is 277 seats. तो इसमें से जो आपकी JRF seats हैं in which you will be getting a scholarship. We will be discussing in the next slide amount of scholarship. So इसमें जो आपकी seats हैं that is 89. तो आपकी जो total JRF seats हैं 89 है, उसमें 89 जो divide है
69 इज़ फॉर योर अनरिजर्व्ड कैटेगरी, इसमें आपका OBS, UPS, ठीक है, ये सारी कैटेगरीज इसमें आती हैं। योर SC, इसमें 13 सीट्स हैं, ST की वी हैव 7, PWBD इज योर 5 सीट्स। तो ये थी आपकी एग्रोनॉमी की सीट्स। ओके, सो नाउ हाउ मेनी स्टूडेंट्स राइट दिस एग्जाम। ओके, तो कितने स्टूडेंट्स राइट करते हैं इसको, based on our analysis, okay, there are around 2 to 3,000 students who are actually writing this agronomy exam. Okay, there are 2,000 to 3,000 students. These are your exam stats for 2023. as you can clearly see, जो हमारे ICAR PG में थे, ठीक है, वो आपके 24,948 स्टूडेंट्स ने ये एग्जाम दिया था। एंड दिस एग्जाम इज कंडक्टेड फॉर योर 19 डिसिप्लिन्स, ठीक है, 19 to 20 इसमें डिसिप्लिन्स होते हैं। तो उसमें अगर आप एवरेज लोगे तो आपकी एग्रोनॉमी में इट विल कम अराउंड 2,000 to 3,000। बट रिसेंटली द स्टूडेंट स्ट्रेंथ इज इंक्रीज्ड। इसका जो एक्चुअल 2024 का डाटा है इट इज़ नॉट रिलीज्ड येट, बट 40,000 approx students have given this 2024 examination. Okay, so you can just clearly see that these numbers are increasing. Like in 2023 it is 24, now it is 40, and I think in 2025 it may go up to 50,000. So now the students who are actually preparing for these examinations are 1/2, ठीक है, half students जो होते हैं, these are the students which are actually preparing. So जो आप कंपटीशन आप मान सकते हैं, इट इज़ फ्रॉम द 20,000 स्टूडेंट्स, 20,000 स्टूडेंट्स से कॉम्पिटिशन। एग्रोनॉमी में हाउ मेनी स्टूडेंट्स वी आर हैविंग, 2,000 to 3,000। इसमें भी जो एक्चुअली जो प्रिपेयर करते हैं और एग्जाम में जाते हैं, डेट विल बी अराउंड 1,000। तो 1,000 में से आपको टॉप 50 रैंक लानी है, डेट इज very easy, okay, based on the other examinations. So if you have a good strategy, if you have a right guidance, you can just crack it and just get into a best premier institute. Okay, so premier institute की बात करी है तो as you all know, the top most premier institute is your IRI. So how much marks ranks you need to score for getting into IRI? So you have to be in your top 5. ओके, तो टॉप 5 में अगर आपकी रैंक आ रही है, देन यू कैन जस्ट लैंड इनटू योर IRI. एज यू नो, IRI इज योर बेस्ट प्रीमियर इंस्टीट्यूट विच इज़ रिनोन्ड फॉर इट्स बेस्ट एग्रीकल्चर एजुकेशन यू विल बी गेटिंग। ठीक है, इसमें आपकी जो रिसर्च है डेट विल बी योर बेस्ट रिसर्च। ठीक है, इसमें आपको फैसिलिटीज़ जो भी मिलेंगी डेट विल बी ऑसम, योर एकोमोडेशन इज़ गुड। ओके, ऑल्सो जो आपके UPSC जैसे एग्ज़ाम्स होते हैं उनको बच्चे क्वालिफाई करते हैं योर ARS एग्जामिनेशन, तो मोस्टली वो आपके इस इंस्टीट्यूट से होते हैं IRI। ओके, सो IRI की जो डिग्री है डेट विल बी जस्ट वर्थ ऑल्सो। और IRI में अब एडमिशन लेना और भी ईजी हो गया है। वाई? बिकॉज IRI के हब्स आर ऑल्सो देयर। ठीक है, तो आप अपना नियर बाय हब्स देख सकते हो जिसमें कि आपका एग्रोनॉमी को उसमें ऑप्शन है MSc के लिए, तो उसमें भी आप जा सकते हो। इफ़ यू आर नॉट हैविंग दिस मच गुड रैंक but you are having rank from top 20 to top 30, you can just opt for IRI hubs also. ठीक है, उसमें भी जो आपको डिग्री मिलेगी that will be of your IRI। ठीक है, तो अब जो है IRI में पहले के मुताबिक जो है अब एडमिशन लेना is bit easy, so you can just get a good rank। okay, now this is for the agronomy, these are the ICAR in IRI seats। ठीक है, जो आपके IRI न्यू दिल्ली में सीट्स हैं, ICAR की देर आर 6 सीट्स, और ये इस तरह से डिवाइडेड है। अनरिजर्व में यू विल बी हैविंग 2, SC में 1, ST में 1 एंड OBC में 2। सो ये पूरी टोटल मिला के आपको 6 सीट्स हैं। मीन्स यू मस्ट हैव योर टॉप 5 रैंक। ओके, यू विल बी अंडर इन टॉप 5 रैंक, सो यू विल बी गेटिंग दिस IRI। ओके, नेक्स्ट इज द एलिजिबिलिटी फॉर द राइटिंग दिस एग्जाम। ओके, तो अगर आपकी BSc में लेट्स से देयर इज अ 10 पॉइंट स्केल, आपकी OGPA जो होगी 10 से है, तो आपका मिनिमम जो चाहिए आपको 6.6 OGPA यू शुड बी हैविंग फॉर द जर्नल OBS, OBC, UPS एंड EWS यू विल बी हैविंग दिस 6.60। अगर आप SC, ST, PWD या थर्ड जेंडर में है तो आपकी जो 10 में से यू विल बी हैविंग 5.6, यू शुड बी हैविंग 5.6 OGPA।
9 पॉइंट स्केल के लिए यू विल बी हैविंग दिस क्राइटेरिया एंड जस्ट फॉर द अदर स्केल्स यू कैन जस्ट सी। ठीक है, तो आपको रफली अराउंड 6.6 से ऊपर आपकी OGP होनी चाहिए। नेक्स्ट इज द एज लिमिट। सो एज लिमिट इज वेरी क्लियरली रिटन, इंडियन नेशनल्स नॉट बिलो द 19 ईयर्स, मतलब यू हैव टू कंप्लीट 19 ईयर्स एज ऑन 31/8/2024। तो ये जो एलिजिबिलिटी थी आपकी 2024 की है। ओके, तो आपके अगस्त में, आपके 31 अगस्त के अंडर you have to complete 19 years. That is your age limit to appear in this examination, and there is no relaxation permissible regarding the minimum age limit. So this is the strict age limit, है ना। और मोस्टली जो है इससे ऊपर ही होते हैं बच्चे, बिकॉज मोस्टली आपके 21, 22, 23 यही जो है एज लिमिट वाले बच्चे यहीं से एग्ज़ाम देते हैं। नेक्स्ट इज स्कॉलरशिप डिटेल्स। अब आपने ये एग्ज़ाम क्रैक किया, आपकी एक अच्छी रैंक आई, है ना, जैसे एग्रोनॉमी में आपकी टॉप 50 में अगर रैंक आई, डेट विल बी योर डिसेंट रैंक। ओके, तो इसमें व्हाट बेनिफिट यू विल बी गेटिंग वाइल परस्यूइंग योर मास्टर्स, नो डाउट यू विल गेट अ प्रीमियर इंस्टीट्यूट। तो उसमें आपको क्या आपको बेनिफिट्स मिलेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल जो स्कॉलरशिप और रेदर वी कैन से द फेलोशिप आपकी 2 टाइप्स की हैं। ठीक है, ऐसे तो 3 की हैं, लेकिन जनरली इनको 2 टाइप्स में वी हैव क्लासिफाइड। फर्स्ट इज योर ICAR PG स्कॉलरशिप। तो ICAR PG स्कॉलरशिप आपके टॉप रैंकर्स को मिलती है। ठीक है, जैसे हमने पीछे देखा जो आपकी JRF सीट्स थी, ठीक है, लेकिन अब उनको JRF नहीं बोलते हैं, JRF उनको पहले बोलते थे। अब जो न्यू नेम है इसका, डेट इज योर PG, और यू कैन से PG फेलोशिप। नाउ JRF इज used in your PhD. JRF and SRF, these terms are used in your PhD. Now the new name is ICAR PG Fellowship. तो ICAR की जो आपको फेलोशिप है इसका अमाउंट है 12,640 पर मंथ। ठीक है, आपको हर महीने जो है 12,640 रुपीज़ मिलेंगे फॉर द 2 years। 2 years की आपकी MSc होगी, हर मंथ आपको 12,640 रुपीज़ आपको मिलेगा। देन 6,000 कंटिजेंसी ग्रांट पर ईयर आप अवेल कर सकते हैं थ्रू योर मेजर एडवाइज़र। इसमें यू विल बी गेटिंग, आप इससे आप एजुकेशन की जैसे बुक्स ले सकते हैं, इक्विपमेंट्स हैं उनको प्रोक्योर कर सकते हैं, एंड अदर थिंग्स विच कम अंडर दिस कंटिजेंसी ग्रांट। सो यू कैन अवेल दिस via the help of your major advisor. Okay, then this is your NTS fellowship. तो अगर आपकी एक अच्छी रैंक नहीं आई, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस ICAR PG स्कॉलरशिप, बट आपने अपनी डोमिसाइल स्टेट के अलावा जो आपकी अदर स्टेट है उनमें अगर आप MSc के लिए एडमिशन लेते हैं थ्रू ICAR, ठीक है, देन यू विल बी गेटिंग दिस NTS फेलोशिप। ओके, तो लेट्स से आई एम हैविंग माई डोमिसाइल स्टेट दैट इज HP। ठीक है, अगर मैं HP के बाहर एडमिशन लेता हूँ, लेटस से मैंने केरला में एडमिशन ले ली, ठीक है, तो आई विल बी एलिजिबल फॉर दिस NTS फेलोशिप दैट इज 5,000 पर मंथ फॉर 2 years, और इसमें कोई कंटिजेंसी ग्रांट आपको नहीं मिलती है। ठीक है, तो डोमिसाइल स्टेट के अलावा मेरे को एडमिशन लेनी, नो डाउट अगर मेरी UG भी केरला से है और मैं PG भी जो है वो केरला से करूँगा तो भी मेरे को ये फेलोशिप मिलेगी। ठीक है, लेकिन अगर मैं अपनी PG HP से करूँ, ठीक है, और आई एम नॉट गेटिंग दिस ICAR PG स्कॉलरशिप, माई रैंक इज़ नॉट गुड, ठीक है, तो उस केस में मेरे को ये फेलोशिप NTS वाली नहीं मिलेगी, बिकॉज दैट माई डोमिसाइल स्टेट विल बी सेम। तो यू विल हैव टू जस्ट गो फॉर अ डिफरेंट डोमिसाइल स्टेट टू गेट दिस NTS फेलोशिप। और जो आपको फेलोशिप मिलती है इन तीनों में से, ऐसा नहीं कि तीनों मिल जाएंगी, यू विल बी गेटिंग द 1 फेलोशिप ओनली। अगर आपकी रैंक अच्छी है तो आप ICAR PG में क्लासीफाई हो जाओगे, अगर ICAR PG नहीं मिल रही लेकिन अदर स्टेट में जा रहे हो तो आपको NTS मिल जाएगी। ऐसा नहीं कि अदर स्टेट में आपको NTS ही मिलेगी, अगर आप अदर स्टेट में जा रहे हो रैंक अच्छी है तो आपको ICAR PG ही मिलेगी। ठीक है, लेकिन रैंक अगर अच्छी नहीं है अदर स्टेट में, देन यू विल बी गेटिंग द NTS। नाउ फॉर द IRI, अगर आपकी IRI या फिर IARI के हब्स में अगर एडमिशन होती है तो उसमें यू विल बी गेटिंग 7,500 पर मंथ अगर आपको ICAR PG स्कॉलरशिप नहीं मिलती है। उस केस में अगर आपकी रैंक इतनी अच्छी नहीं है, लाइक यू आर नॉट क्वालिफाइंग फॉर दिस PG क्राइटेरिया ICAR PG स्कॉलरशिप, देन ICAR में एडमिशन होगी, आपके IRI में एडमिशन होगी तो आपको IRI की फेलोशिप मिलेगी। ऑल्सो अगर आप IRI के किसी भी हब्स में जाते हो उधर भी आपको ये फेलोशिप मिलेगी। एंड 10,000 कंटिजेंसी फॉर 2 years if admitted in IRI in its hub. So I think that is much about your scholarship. I have cleared everything,
and you can just take a note here. Now the types of questions which are being asked in your ICAR PG examination. तो इन रिसेंट लाइक आवर 2020 से पीछे जाओगे तो 2000 से पहले पहले जो थे आपके क्वेश्चंस काफ़ी सिंपल आते थे, दे आर ओनली वन लाइनर क्वेश्चंस. लेकिन 2020 से अभी तक जो हम देख रहे हैं आपके क्वेश्चन का ट्रेंड हैज़ चेंज्ड, ड्रास्टिकली चेंज्ड वी कैन से. और आपके जो क्वेश्चन का लेवल है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है. जो आपके क्वेश्चंस आते हैं असर्शन रीजनिंग में पूछे जाते हैं. There are two statements given your assertion and reason. You have to just check these two statements. Based on this, you have to mark your answer. So आपके statement wise question जो आप ज़्यादा पूछे गए हैं, ठीक है. आपके arranging in options, direct multiple types questions भी आपके आते हैं, single liner भी आ सकते हैं, statement questions and match the following. ठीक है. तो these are your trend of the paper and I think and I can predict like upcoming years में ये trend जो है और भी different and tough भी हो सकता है ये trend. लाइक आप यूपीएससी गवर्नमेंट एग्जाम्स के पेपर देखते हो, उनका भी जो ट्रेंड है ड्रास्टिकली चेंज हुआ है, वैसे ही हमारा आईसीआर का भी हो सकता है. तो यू शुड बी वेल प्रिपेयर्ड एंड वेल प्लान्ड फॉर दिस. ओके, सो दिस इज द टाइप ऑफ द क्वेश्चंस. नाउ वी विल बी डिस्कसिंग द सिलेबस विच फॉल्स अंडर एग्रोनॉमी. ठीक है, आप सिलेबस जो है ऑनलाइन आप हमारी वेबसाइट से डेट इज www.agriadic.in, यहाँ से भी आप सिलेबस की एक कॉपी ले सकते हो. Or you can just refer the internet and from the official source you can just download your syllabus. Okay, and we have also listed the syllabus in the next slides. और syllabus को हम एक एक करके अच्छे से डिस्कस करेंगे. ठीक है, so our code is 05 for your agronomy. ठीक है, and major subject group if agronomy only and सब सब्जेक्ट में भी आपका agronomy है. तो agronomy के अंडर कोई आपके फर्दर सब्जेक्ट नहीं है. ठीक है, जैसे आपका प्लांट साइंस हो गया, फिजिकल साइंस, इनके अंदर आपके वेरियस सब्जेक्ट आ जाते हैं. आपके जीपीपी आ गया, प्लांट पैथो आ गया. लेकिन एग्रोनॉमी इज योर होल सब्जेक्ट, कंप्लीट सब्जेक्ट. इसकी जो यूनिट्स हैं देयर आर 9 यूनिट्स फॉर द एग्रोनॉमी. ओके, और ये आपकी यूनिट फर्स्ट है. इसका सिलेबस दिस इज मेंशन्ड. ठीक है, तो यूनिट फर्स्ट से जो आपके क्वेश्चन बनते हैं वो आपके करंट के क्वेश्चन. ओके, जो आपके करंट अफेयर्स हैं, जो भी आपका लेटेस्ट डाटा है, आपकी वैरायटीज से रिलेटेड कुछ भी है, तो वो आपका यूनिट 1 से बनता है. As you can see, importance of agriculture in national economy. This is all your current. ठीक है, नेक्स्ट जो आपकी ये है, ये आपका प्लांट फिजियोलॉजी का पोर्शन आ गया. दिस पोर्शन यू हैव कवर्ड इन योर 11th and 12th स्टैंडर्ड. जिन्होंने बायो जिनकी थी 11th and 12th में, दे माइट हैव कवर्ड दिस. ओके, दिस इज योर जस्ट प्लांट फिजियोलॉजी पोर्शन, योर मेंडल्स लॉ अबाउट फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, फोटो रेस्पिरेशन. ठीक है, तो इससे जो है रिसेंटली जो है काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आने लगे हैं एंड यू कैन जस्ट एक्सपेक्ट अराउंड 8 to 9 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस प्लांट फिजियोलॉजी और यूनिट 1. 8 to 9 क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड. और इस इम्पोर्टेंस से भी देर आर 5 to 6 क्वेश्चंस. सो फ्रॉम द यूनिट 1 यू कैन जस्ट एक्सपेक्ट 15 to 20 क्वेश्चंस. ओके, बिकॉज इसमें आपका ऑर्गेनाइजेशन सेटअप भी आ गया. तो इसमें से आपके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, आई एम हाईलाइटिंग इट हेयर, यू हैव टू जस्ट लुक. तो फर्स्ट ऑफ ऑल योर इम्पोर्टेंस इज इम्पोर्टेंट. ओके, देन योर फोटोसिंथेसिस, योर एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, फोटो रेस्पिरेशन में आपके C3 C4 साइकिल. ठीक है, ये सब चीज़ें आ गई. देन ट्रांसपिरेशन और आपके मेंडल्स के लॉ, योर मेंडेलियन जेनेटिक्स एंड योर इम्पोर्टेंट रूरल डेवलपमेंट, जैसे कि आपके प्रोग्राम्स हो गए, आपका एक्सटेंशन का पार्ट है, वो इसमें आ जाता है. ओके, सो दीज आर द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स. और ये जो आपकी क्रॉप्स यहाँ पे मेंशन है, इसके लिए वी हैव अ स्पेसिफिक यूनिट, वहीं से हम इसको कवर करेंगे. तो ये आपके इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वी हैव जस्ट हाईलाइटेड हियर. नेक्स्ट इज योर यूनिट 2. इन द यूनिट 2 देयर इज अ प्रिंसिपल्स ऑफ एग्रोनॉमी. ओके, तो दिस यूनिट कंप्राइजेज ऑफ योर 20 to 25 क्वेश्चंस और मैक्सिमम क्वेश्चन जो आपको पूछे जाएंगे वो यही इसी यूनिट से आपको पूछे जाएंगे. दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ एग्रोनॉमी. इसमें आपका रफली वी कैन से योर पोर्शन ऑफ योर एग्रोमिटोलॉजी इज इम्पोर्टेंट. ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट है. इससे आपके इंस्ट्रूमेंट से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं. योर वेदर इवेंट्स, जैसे कि इस साल आपका कौन सा इवेंट है, योर एनसो ऑसिलेशंस आर देयर, योर ला नीना इज देयर. ठीक है, तो इन तरीकों से, इन जो टॉपिक से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे. देन आपके इंस्टीट्यूट से देर आर मैचिंग टाइप्स क्वेश्चंस, मैचिंग प्रॉब्लम्स आर देयर फ्रॉम द इंस्टीट्यूट. ये हर साल पूछे जाते हैं, ये एक फिक्स पैटर्न है विच आई एम डिस्कसिंग. देन
फ्रॉम द टिलेज देर आर द स्टेटमेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। जो आपका टिलेज का इफेक्ट है सॉइल में कैसा है, मोस्टली फ्रॉम द कंजर्वेशन टिलेज और जीरो टिलेज, यहाँ से जो है वो क्वेश्चन पूछे गए हैं। देन हेयर कम्स इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज योर ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड प्रिसीजन फार्मिंग। ऑर्गेनिक और प्रिसीजन से रफली 8 to 10 क्वेश्चंस आर आस्क्ड, और प्रिसीजन से तो आपके स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस, आपकी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स होगी, उनकी हाइट, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, फिर प्रिसीजन फार्मिंग के आपके प्रिंसिपल्स, तो इन सब से आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम से इजी क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड, यू कैन जस्ट इजीली सॉल्व देम, इससे आपके इजी क्वेश्चंस आएंगे। फील्ड एक्सपेरिमेंट से आपके न्यूमेरिकल्स टाइप की प्रॉब्लम्स, आपके 2 क्वेश्चंस और 2 to 3 क्वेश्चंस यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस। Then from your greenhouse effect, these are just your environment type of things, so you can just easily like आपके CO2 emissions हो गए, your greenhouse effects, इनसे आपके क्वेश्चन पूछ जाएंगे, तो ये आपका environment part में आ गया। तो if you have elementary knowledge of this environmental studies, you can just easily crack it। ठीक है, role of GIS GPS, it will come under this precision farming। Then weather and climate, अर्थ एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, वेदर फोरकास्टिंग, ठीक है, इसमें आपकी क्लाउड सीडिंग, इनसे भी आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसमें जो आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ें आई, दैट इज़ प्रिसीजन फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, योर टिलेज एंड योर रोल ऑफ GIS एंड GPS, और आपके वेदर एंड क्लाइमेट। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ऑल्सो योर फील्ड एक्सपेरिमेंटेशन। तो ये जो टॉपिक है, ये आपको जो मैंने हाईलाइट करे, यू हैव टू जस्ट कवर दीज। ओके, अगर आपके पास कम टाइम है तो ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, लेकिन यू हैव टू कवर ऑल इफ यू हैव अ सफिशिएंट टाइम। मतलब जो हाईलाइटेड वाले हैं उनको आप छोड़ नहीं सकते हो, ठीक है। देन यूनिट 3 फील्ड क्रॉप्स, तो फील्ड क्रॉप से भी अब डायरेक्ट क्वेश्चन ही पूछे जा रहे हैं। इससे मोस्टली आपको टाइम ऑफ इरिगेशन से और क्रिटिकल स्टेजेस से क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड। क्रिटिकल स्टेजेस ऑफ इरिगेशन, ठीक है, पर्टिकुलर क्रॉप है उसमें कौन सा आपको कंपाउंड मिल रहा है, लाइक आपका सोरगम है उसमें क्या चीज़ होती है, कौन सा एसिड है, तो इन चीज़ों से आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और ऑल्सो फ्रॉम द रिसेंट वैरायटीज़, तो वैरायटीज़ भी आपको आई कैन से एट लास्ट आपको चेक करनी है कि कौन कौन सी नई वैरायटीज़ रिलीज़ हुई हैं, तो वो आपको एक बार पढ़ लेनी है, उससे आपका क्वेश्चन बन जाएगा। और इस बार जो है आपसे मिलेट से भी देयर आर चांसेस की क्वेश्चन आए। पिछली बार भी आया था आपका डेट व्हाट इज कौन सा साल था आपका जो आपका इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स हमने सेलिब्रेट किया था। तो इस टाइप का सिंपल क्वेश्चन आपके साइंटिफिक नेमिंग से भी आ सकता है, लाइक आपके मेजर मिलेट्स, आपके 4 मिलेट्स दे दिए जाएंगे और मैच इट में यू विल बी आस्क्ड दिस क्वेश्चंस। तो इसमें आपकी जो इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल राइस, व्हीट, मेज, दीज आर इंपॉर्टेंट, सोरगम इज इंपॉर्टेंट, ऑल योर मिलेट्स आर इंपॉर्टेंट, ओके, बार्ले ऑल्सो। पल्सेस में आपके राइजोबियम वगैरह नाइट्रोजन फिक्सेशन से आपसे क्वेश्चंस हैं, किस हिसाब से वो फिक्सेशन होती है, उनके क्या स्टेप्स हैं, उसको आपको अरेंज करना है, वो आपके क्वेश्चंस आएंगे। फाइबर क्रॉप्स में साइंटिफिक नेम से क्वेश्चन आते हैं, इनमें जो ऑपरेशन करते हैं, लाइक जूट में वीडू, रेटिंग, ठीक है, और भी इसके जो फर्दर सीक्वेंस होता है वो आता है टोबैको में। देन योर चिकपी, योर फोडर, फोरेजेस, तो ये आपको पूरा करना है, ठीक है, यू कांट लीव दिस। तो मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट्स हैं, इससे आपके जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लाइक प्लांट का कौन सा पार्ट है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, लेट्स से नीम है, तो नीम का कौन सा पार्ट इम्पोर्टेंट है, रूट, शूट, लीव्स, ठीक है। So these type of questions are asked, okay, so you can just see. Moving to the next, we are having this unit 4 में we have the weed management, और weed management से there are good number of questions asked, there are 20 to 25 questions are being asked from this weed management, और काफ़ी सिस्टमेटिक वे से आपका जो है पेपर आता है, लाइक आपका एक क्वेश्चन आपका प्रिंसिपल से आएगा, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्लासिफिकेशन से, ऐसे बायोलॉजी, इकोलॉजी, देन आपका वीड डिस्पर्सल हो गया, देन उसके बाद जो क्वेश्चन स्टार्ट होंगे आपके हर्बिसाइड प्रेसिडेंट। तो अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस करोगे, जो कि हम अपने प्लेटफॉर्म में भी करवाएंगे, तो उससे आप देख सकोगे कि आपके एकदम सिस्टमेटिक वे से क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे कि सबसे पहले जो आपको सिंपल आपके वीड से आपकी डिस्पर्सल, आपकी क्लासिफिकेशन, उसके बाद हर्बिसाइड का चलेगा, हर्बिसाइड से 1 न्यूमेरिकल इज बीइंग आस्क्ड ऑल्सो, ठीक है, न्यूमेरिकल से भी क्वेश्चन आता है, लेकिन जो 2024 का पेपर था उसमें ये न्यूमेरिकल देखने को नहीं मिला, लेकिन उससे पहले जो है हर साल एक न्यूमेरिकल आ रहा है यहाँ से हर्बिसाइड से, ओके।
देन आपके स्पेशल एंड प्रॉब्लमेटिक वीड्स, आपके पैरासिटिक वीड्स आ गए, इससे भी रिसेंट ईयर में एक क्वेश्चन आया था, ठीक है, मैजिक में आया था। देन योर वीड फ्लोरा शिफ्ट, आपके वीड रेजिस्टेंस जो आपके हर्बिसाइड रेजिस्टेंस हो गए उनसे आपसे क्वेश्चन पूछा गया। सो दिस यूनिट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल द टॉपिक्स लिस्टेड आर इंपॉर्टेंट, यू कांट स्किप। देन फ्रॉम द वाटर मैनेजमेंट, इससे आपके मोस्टली न्यूमेरिकल्स आर बीइंग आस्क्ड, ठीक है, कितनी डेप्थ तक हमें इरिगेशन देनी है, कितना पानी हमारे फील्ड में गया, फिर आपके फील्ड कैपेसिटी, परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट, इन टॉपिक से आपसे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछेंगे। आपके कंजक्टिव यूज ऑफ वाटर आ गया, इरिगेशन वाटर की क्वालिटी, उसमें सैलिनिटी, ईसी वगैरह, इन सब चीज़ों से यू कैन एक्सपेक्ट द क्वेश्चन। मेथड्स ऑफ इरिगेशन आर देयर, आपका ड्रिप इरिगेशन हो गया, ठीक है, जो आपके माइक्रो इरिगेशन स्पेसिफिकली यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। तो वीड मैनेजमेंट, योर वाटर, इससे भी आपका रफली 20 to 25 क्वेश्चन आर आस्क्ड, ठीक है। तो ये आपकी यूनिट 4, यूनिट 5 और यूनिट 6 जो कि आपका सॉइल है, क्योंकि सॉइल और वाटर जो है ये एक रिलेशनशिप में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, सॉइल वाटर रिलेशनशिप यू कैन से, सॉइल और वाटर को मिक्स करके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। सॉइल फर्टिलिटी में आपके एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स हैं, किसने दिए थे, कब रिफाइन हुए, इसके डेफिशिएंसी सिम्टम्स, कंसेप्ट ऑफ एसेंशियलिटी, ठीक है। आपके फर्टिलाइजर से क्वेश्चंस हैं और इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आपके प्रिंसिपल्स एंड मेथड। तो सॉइल्स में जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज योर सॉइल फिजिक्स और सॉइल फर्टिलिटी। तो मोस्टली क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड फ्रॉम हियर, आपके वेरियस लॉज ऑफ मिनिमम, मैक्सिमम, लीबिग्स लॉ है ना, इन सब से आपसे क्वेश्चन पूछे गए। देन योर ड्राईलैंड एग्रोनॉमी, इससे भी 10 to 15 क्वेश्चंस आर देयर, ओके, 10 to 15 क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड फ्रॉम दिस ड्राईलैंड। तो इसमें आपके ड्राईलैंड की इडियोटाइप्स, मिड सीजन करेक्शंस, ठीक है, इधर मैं लिख देता हूँ इडियोटाइप्स, मिड सीजन करेक्शन, your anti-transparents, these are your topics you can't leave, you must have to cover this. Your watershed, types of drought, your classification of dryland, your dry farming, dryland and your rainfed farming। तो इनसे जो है आपसे मोस्टली क्वेश्चंस यहीं से पूछे गए हैं, ओके, सो टेक अ नोट हियर। नेक्स्ट कम्स योर प्रॉब्लम सॉइल्स। तो प्रॉब्लम सॉइल से इस साल इन 2024 देयर आर 2 to 3 क्वेश्चंस। 2023 में देयर इज नो क्वेश्चन, लेकिन 2024 में देयर आर 2 to 3 क्वेश्चन। इसमें आपके जो क्वेश्चन आएंगे मोस्टली प्रॉब्लम सॉइल 3 तरीके की, जो आपकी सलाइन, योर अल्कली जिनको आप सोडिक भी बोलते हो, और आपके सलाइन सोडिक सॉइल्स, इनकी जो आपकी रिस्पेक्टिव वैल्यूज होती हैं, आपके पीएच, ईसी, एसएआर, ईएसपी, इन्हीं वैल्यूज से आपसे स्टेटमेंट वाइज में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मोस्टली यही क्वेश्चन रिपीट होते हैं बार बार, तो अगर आप एक बार इनकी जस्ट ये वैल्यूज देख लोगे देन यू कैन जस्ट इजीली सॉल्व इट। तो यू ऑल्सो कांट लीव दिस टॉपिक। नाउ सस्टेनेबल लैंड यूज सिस्टम्स, ठीक है, एंड अल्टरनेट कंजर्वेशन एग्रीकल्चर मोस्टली। सो इन दिस कंजर्वेशन एग्रीकल्चर इज अ इम्पॉर्टेंट पार्ट। ऑल्सो योर एग्रो फॉरेस्ट्री, ठीक है। तो यूनिट 9 से यू कैन जस्ट हैव टू कवर दीज टॉपिक्स, दीज आर वेरी मच इंपॉर्टेंट, और जो आप बुक्स फॉलो करोगे वो हम नेक्स्ट इसमें देखेंगे। सो दीज आर द बुक्स एंड आई हैव लिस्टेड ऑल द बुक्स विच आर अवेलेबल फॉर द एग्रोनॉमी एंड विच आर हेल्पफुल फॉर यू, और आपको कौन कौन से टॉपिक उन बुक्स से आपको करने हैं। तो एक बार आपको सारी बुक्स यू हैव टू जस्ट सी। तो फर्स्ट 3 बुक्स यू मस्ट हैव, मतलब ये बुक्स आपके, अगर आप एग्रोनॉमी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये बुक्स यू कांट लीव, ओके, यू मस्ट हैव दीज 3 बुक्स। फर्स्ट इज योर प्रिंसिपल्स ऑफ एग्रोनॉमी बाय रेड्डी एंड रेड्डी, नेक्स्ट प्रिंसिपल्स ऑफ एग्रोनॉमी बाय एस.आर. रेड्डी, and agronomy facts for competition. This is the new 6th revised edition by your R.S. मीना and संदीप कुमार सिहाग सर। तो ये बुक आपकी 3 आपके बुक बैंक में होनी ही चाहिए, ठीक है, तो ये बुक्स तो आप छोड़ नहीं सकते। तो इसमें आपके मोस्टली जो टॉपिक्स हैं कवर हो जाएंगे, ठीक है। अगर आप इन 3 बुक से भी आप प्रिपरेशन करोगे देन दैट इज द सफिशिएंट, ओके।
Topics coverage is unit 2, 5, 6, 9. Agriculture methodology is important. You have to just cover from these two books and revise with RS Meena. तो RS Meena is was this is your gist of these books. इन दोनों बुक का आपका एक सार है जो आपकी RS Meena में प्रेजेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले आप रेड्डी एंड रेड्डी से कवर करोगे, देन SR रेड्डी से यू विल बी कवरिंग, और लास्ट में जो आप कंपाइलेशन करोगे, रिवीजन करोगे, यू कैन जस्ट डू फ्रॉम दिस RS Meena, ओके। एंड यू डोंट हैव टू मेक नोट्स फ्रॉम दिस RS Meena, ठीक है। अगर आप इस बुक से नोट्स बनाने लोगे देन एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट इन दिस बुक्स। मोस्टली फैक्चुअल चीज़ें आपकी प्रेजेंट हैं, जो आपकी स्पेसिफिकली जो आपकी इंपॉर्टेंट लाइंस हैं इन्हीं बुक से उठा के इसमें लिख दी गई हैं, ठीक है। तो इसके आप नोट्स बनाने की जरूरत है। दिस इज जस्ट योर नोट्स फॉर्म। ये बुक आपको खुद ब खुद जो है एक नोट्स के फॉर्म में मिलेगी। तो नोट्स बनाने अगर आपको, तो आप इन टू बुक से यू कैन जस्ट मेक नोट्स, ओके। नेक्स्ट फॉर द फील्ड क्रॉप्स, तो फील्ड क्रॉप्स के लिए आई कैन सजेस्ट यू दीज 3 बुक्स। अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम है, यू आर हैविंग लाइक 1 ईयर, 1 से 1 से ज़्यादा साल है, तो तब तो आप जो है बल्कि बुक्स, आपकी टेक्स्ट बुक ऑफ फील्ड क्रॉप प्रोडक्शन बाय राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, ये 2 बुक्स हैं आपकी बाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यू कैन जस्ट फॉलो। लेकिन इफ यू आर यू वांट टू कवर इन अ वेरी लेस टाइम, देन यू कैन जस्ट रेफर फ्रॉम द RS Meena सर बुक। RS Meena सर की बुक में भी इन दोनों बुक से जो जिस्ट है वो उठा के यहाँ पे डाल दिए गए। तो फॉर दिस आई कैन रिकमेंड यू दिस RS Meena सर बुक। यू डोंट हैव टू गो इन दिस 2 बल्कि बुक्स, बिकॉज ये बुक्स काफ़ी ज़्यादा बड़ी हैं और आप इतना ज़्यादा टाइम अगर फील्ड क्रॉप्स में इन्वेस्ट कर दोगे एंड दैट इज़ नॉट एफिशिएंट। तो you can just refer here. And important topics, I have listed your crop varieties and critical stages in the crops, okay. Next is your agronomy for your weed management. Now for the weed management there are 2 books, okay, rather we can say there are 3 books, ठीक है। तो 2 में भी there are, this is your OP Gupta book and this is your TK Das book. So personally I can recommend you is the TK Das sir book because its language is very much easy, because आपके जो बच्चे हैं जो नॉर्थ इंडिया से हैं तो वो उनको इंग्लिश में थोड़ी बहुत डिफिकल्टी हो जाती है, तो इसकी लैंग्वेज काफ़ी ज़्यादा इजी है इस बुक की। तो यू कैन जस्ट रेफर दिस TK दास सर बुक। ऑल्सो इफ यू हैव वेरी लेस टाइम, अगर आप ये भी नहीं करना चाहते, देन यू कैन जस्ट रिवाइज फ्रॉम दिस RS Meena सर बुक। यू कैन, बिकॉज इसमें RS Meena सर जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके वीड मैनेजमेंट में वो सब इसमें पूछे गए हैं। यू कैन जस्ट रिवाइज इट फ्रॉम हियर। Important topics I have listed here and I have also explained it earlier, you can just see. Then for the water management, I would not suggest this book, but you can just complete your water management part from this SR Reddy and Reddy and Reddy. But if you have time, you want deep study, so you can just refer this irrigation agronomy by SR Reddy and GK Reddy. Also other books are available, that is your AM Michael sir book, but that will be in a very for the advanced preparation. Basic questions are asked for the water, so you can just refer this SR Reddy and Reddy and Reddy. Now these are the important topics in which I want to highlight these numericals, because these are tremendously increasing day by day. आपके 2023 में there are 10 to 11 numericals just from this water side, okay, water management. तो 2025 में you can expect फिर आपके moisture estimation से numericals हैं, okay. You will be having numericals from the scientific conversions also, okay, like ppm to kg per hectare, ppm to mg per liter. So these type of numerical you can expect. So ये आपका water management का portion था. Next for the soil portion, like आपके हमारे agronomy में we are having RS Meena sir book, वैसे ही soil के जो students हैं they are having the soil science treatise, that is your just you can say a concise and compiled version for your soil science preparation, ठीक है। तो soil science के लिए you can just follow this book, you don't have to make the note from this book, just read it and highlight it and give multiple revisions, almost 3 to 4 revisions अगर आप उसमें दोगे, you can easily solve your soil science portion questions. Important topics I have listed, out of which most important are your soil physics and your soil fertility, ठीक है। Then after completing the soil science treatise, you can also revise from this RS Meena sir book, and just by compiling notes from these both of the books, you can easily solve the questions and mark your answer correct. Next for the numericals, one book I would suggest you to follow, that is by the Dr. Amit Patnagar sir, that is Mathematical Agriculture Concept and Numericals.
All the topics which are listed in this book, you have to cover the numericals of those topics, mostly from the water side. Your soil parameters, your water efficiencies, water numericals you have to solve. Okay, these are the important topics. Also, you can solve the numericals from the RS Meena sir book, whichever they are listed. Okay. Then from the plant physiology for your unit 1, I can suggest you one source. You don't have to follow much books for this. You just have to follow one PDF that is provided in the internet itself, that is plant physiology. Okay. Also, all the books we have listed, you can just check the link in the description box and just buy from here. तो आपको links जो है वो description में मिल जाएंगे इस वीडियो के. तो उन बुक्स का अपडेटेड वर्जन आप खुद ढूंढने की जरूरत नहीं है. वी हैव प्रोवाइडेड ऑलरेडी इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन जस्ट चेक डाउन. तो प्लांट फिजियोलॉजी के लिए दीज आर द LN नोट्स, यू कैन जस्ट फॉलो. ऑल्सो यू कैन फॉलो अरुण कात्यान सर बुक फॉर द प्लांट फिजियोलॉजी, और यू कैन ऑल्सो फॉलो 11th 12th NCERTs because direct questions are being asked from these books. And if you have done 11th and 12th from the bio, you can easily solve this portion. Okay, these are the important topics, you can just refer. Next, for the PYQs, as you all know, solving PYQs is very important. अगर आपको PYQs के लिए मैं बुक सजेस्ट करना चाहूँ तो earlier we are not having so much resources. हमारे पास एक बुक होती है that is Agronomy Treatise, you all know. लेकिन in the recent year there are various books for the PYQs, because PYQs भी हमें वो करने हैं जो क्वालिटी PYQs हो. ठीक है, आपको बड़े ज़्यादा पुराने PYQs भी नहीं करने हैं जिसमें आपके सिंगल लाइन के क्वेश्चन है और वही घिसे बिटे. ठीक है, तो आपको करने की ज़रूरत नहीं है. यू मस्ट नो देम, बट आपको जो बेस्ट PYQs मिलेंगे वो आपको इन बुक्स में मिलेंगे. दैट इज सॉल्व मैग्ना कार्टा फॉर द एग्रोनॉमी एंड सोइल साइंस बाय सत्यम रावत सर एंड राजन शुक्ला सर. ये बुक खुद मैंने भी फॉलो करी थी. ऑल्सो आई हैव फॉलोड दिस एग्रोनॉमी ट्रीटाइज. इसमें आपको PhD के, PG के, ASRB सभी जो एग्ज़ाम के आपको 90s से उठा के 2000 आपके लेटेस्ट आपको क्वेश्चन इन बुक्स में मिल जाएंगे. लेटेस्ट के लिए आई वुड रेदर से दिस बुक इज गुड, योर सोल मैग्ना कार्टा. इसमें आपको एग्रोनॉमी के भी मिलेंगे, ठीक है, आपको वाटर के भी मिलेंगे, आपकी सॉइल साइंस, इन सब के आपको PYQs आपको इस बुक में मिल जाएंगे. योर PG, PhD, ठीक है. और स्टार्टिंग में यू विल ऑल्सो हैविंग द रिफाइन पॉइंट्स और न्यू जो आप इसमें अपडेटेड डाटा है वो आपको इस बुक में मिल जाएगा. ऑल्सो देर इज अनदर बुक फॉर द एग्रोनॉमी फॉर द PYQs एंड इन साइंटिफिक एग्रोनॉमी, बट आई थिंक इफ यू हैव these two books that will be sufficient. But if you want to purchase these, you can also refer these. For the current, you can just go from this book, that is 34 years गवर्नमेंट जो PYQs. इसमें आपको AFO से लेकर आपके जो भी स्टेट के एग्रीकल्चर एग्जाम्स होते हैं सभी की आपको कंप्लीट इसमें इंफॉर्मेशन मिल जाएगी. ओके. नेक्स्ट फॉर द जनरल एग्रीकल्चर, आई वुड रेदर से यू कैन जस्ट फॉलो दिस RS मीना सर बुक, बिकॉज अगर आप इतना ज़्यादा आप टेक्स्ट बुक से पढ़ रहे हो तो आई थिंक देर इज़ नो नीड टू स्टडी दिस फ्रॉम दिस स्पेसिफिक लाइक नेमरा सुन्ना सर. दीज आर वेरी बेसिक बुक्स. आई थिंक एवरीवन हैव दीज बुक्स, है ना. तो आप इससे भी पढ़ सकते हो, लेकिन इतना ज़्यादा पढ़ रहे हो तो जनरल एग्रीकल्चर की आई थिंक देर इज़ नो नीड. लेकिन फिर भी यू कैन जस्ट रेफर these two books for this. ओके. नेक्स्ट, ऑल सेट ऑफ बुक्स आई हैव मेंशन्ड. तो इतनी ज़्यादा बुक्स हैं, आप सारी नहीं ले पाओगे बिकॉज देर ऑल्सो मनी कंस्ट्रेंट इज ऑल्सो देयर फॉर द सम स्टूडेंट्स. लेकिन इफ़ आई वुड रेदर से लाइक अगर आपको मैं बेस्ट बुक्स बता सकूं तो उसमें आई हैव गिवन दिस प्रायोरिटी. ठीक है, अगर आप 3 लेना चाहते हो, 4 बुक्स लेना चाहते हो, 5 लेना चाहते हो, तो उसके हिसाब से दिस इज़ द प्रायोरिटी ऑर्डर यू मस्ट हैव. तो फर्स्ट, अगर आप कोई भी बुक नहीं लेना चाहते देन यू कैन जस्ट गो फॉर दिस वन बुक. ओके. अगर आप 2 बुक्स से पढ़ना चाहते हो यू कैन जस्ट रेफर दिस. वैसे आपके दीज आर मिनिमल लिस्ट आपकी 8 बुक्स की. ये 8 बुक्स आपके बुक बैंक में होनी ही चाहिए इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग दिस फॉर द एग्रोनॉमी एंड यू वांट अ गुड रैंक. ओके. तो ये थी इसकी 8 बुक्स. आई हैव जस्ट मेंशन्ड द प्रायोरिटी. देन if you want deeper study, you want to study more, so you can just refer these other books also, but I think that will be sufficient. तो काफ़ी कंसाइज वे में आपके पास मैंने बुक प्रेजेंट करी है, तो ये आपके पास इनको आप फॉलो कर सकते हो. नेक्स्ट, टॉकिंग अबाउट आवर ऑनलाइन बैच. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल
So next I will talking about our online master course. So before it, let me introduce to our mentors who are actually going to teach you in your online master course which our platform is providing. So our mentors are those, ठीक है, जिन्होंने खुद जो है अपने टाइम पे they have cracked this exam with a very good rank. ठीक है, our first mentor is a Supriyo मंडल सर, ठीक है, दे आर एमएससी स्कॉलर फ्रॉम द IRI न्यू दिल्ली, ठीक है, और मोस्टली आपके एग्री एडिट के जो भी मेंटर्स होते हैं ये आपके मोस्टली IRI से होंगे और अदर प्रीमियर इंस्टीट्यूट से होंगे, और इफ दे हैव सिक्योर्ड अ गुड रैंक, ओके, तो वही जो है आपको टीच करेंगे, एंड दैट इज वन यूनिक एंड डिफरेंट थिंग्स फ्रॉम द अदर प्लेटफॉर्म्स because IRI provides you the top qualified educators. So first is your Supriyo Mandal sir, next your Ritik sir, and that's me Nikhil, and I am the MSc scholar from the CSK HPKV Palampur. So these are the mentors which are going to take your classes, teach you, guide you for your preparation. Next, this is about our online master course, ठीक है, now we will be just having a quick look. तो ऑनलाइन मास्टर्स कोर्स जो हमारा एग्री एडिक्ट है डेट ओनली रन्स वन बैच फॉर योर सब्जेक्ट पर ईयर, ठीक है, तो हमारा ओनली एक बैच होता है हमारे एक साल में, और ये बैच आपका जनरली जुलाई टू अगस्त में लॉन्च होता है फॉर द एग्रोनॉमी. वी हैव ऑलरेडी लॉन्च्ड आवर कोर्स, ठीक है, और दिस बैच इसकी जो आपकी वैलिडिटी है टिल योर एग्जाम डे दिस विल बी अवेलेबल टू यू. और मैथ आपका जो मोड है टीचिंग का डेट विल बाईलैंग्वेज, तो आपका लैंग्वेज बैरियर जो है इसमें नहीं आएगा, मीन्स यू विल बी हैविंग द क्लासेस बोथ इन हिंदी एंड इंग्लिश. मोस्टली जो आपकी पीपीटीज हैं डेट विल बी इन इंग्लिश, और आपकी एक्सप्लेनेशन जो आपकी इंग्लिश एंड हिंदी बोथ में होगी, बिकॉज वी आर हैविंग डाइवर्स स्टूडेंट्स फ्रॉम द नॉर्थ साइड, साउथ साइड. साउथ के आपके मोस्टली इंग्लिश समझते हैं, नॉर्थ के हिंदी, तो हम जो है एक्सप्लेनेशन जो करते हैं डेट विल मीन बाइलिंगुअल फॉर्म. सो लैंग्वेज बैरियर शुड नॉट बी देयर, ओके. सो यू विल बी प्रोवाइडिंग विद द टू डिफरेंट कोर्सेज. आपके पास दो डिफरेंट कोर्सेज हैं. लाइक अगर आप बेस्ट अगर आपको मैं सजेस्ट करूं देन यू कैन जस्ट गो फॉर आवर ऑनलाइन मास्टर कोर्स, बिकॉज इन द ऑनलाइन मास्टर कोर्स एवरीथिंग यू विल बी इंक्लूडेड, मतलब एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन इट. लाइक जो आपकी क्लासेज हैं मोस्टली आपकी लाइव क्लासेस चलेंगी, ठीक है, और उसकी आपको रिकॉर्डिंग जो है आपको अवेलेबल हो जाएगी आफ्टर दैट लाइव क्लास. तो यू विल बी गेटिंग द लाइव क्लासेस, recorded classes, you will be getting the mock test series, ठीक है. तो कुछ क्वेश्चन जो आपको बच्चों का डाउट होता है कि सर हमें मॉक टेस्ट बंडल जो है अगर आपने ऑनलाइन मास्टर कोर्स में एनरोल किया है तो क्या हमें सेपरेट मॉक टेस्ट बंडल भी लेना पड़ेगा. तो लेट मी क्लियर यू, इफ़ यू हैव जस्ट एनरोल इन आवर ऑनलाइन मास्टर कोर्स तो आपको मॉक टेस्ट बंडल लेने की जरूरत नहीं है. यू विल बी प्रोवाइडेड इन दिस ऑनलाइन मास्टर कोर्स योर मॉक टेस्ट बंडल, तो इसी में आपका ये इंक्लूडेड होगा मॉक टेस्ट बंडल भी. लेकिन अगर कोई स्टूडेंट ऑनलाइन मास्टर कोर्स नहीं लेना चाहता है, ही वांट टू प्रिपेयर फ्रॉम द सेल्फ प्रिपरेशन करना चाहता है और मॉक टेस्ट लेना चाहता है, देन ही कैन जस्ट एनरोल, ही और शी कैन एनरोल इन आवर मॉक टेस्ट बंडल इन विच वी आर प्रोवाइडिंग विद 50+ मॉक टेस्ट, जिसमें कि आपको टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट मिलेंगे. आपके फुल सिलेबस मॉक टेस्ट आर देयर एंड ऑल्सो द जनरल एग्रीकल्चर मॉक टेस्ट. लाइक इस बार इसकी स्ट्रेंथ 50+ है, ठीक है. अगर आप अगले साल लोगे मॉक टेस्ट वो आर प्रिपेयरिंग फॉर योर 2026 तो इसकी स्ट्रेंथ आपकी 100+ हो जाएगी, ठीक है. ऐसे ऐसे मॉक टेस्ट ही बढ़ते जाएंगे आपके 150+ इन योर सब्सिक्वेंट ईयर्स. तो आई वुड रेदर से यू कैन जस्ट गेट दिस ऑनलाइन मास्टर कोर्स. हेयर यू कैन जस्ट लर्न फ्रॉम आवर बेस्ट मेंटर्स, ओके. एंड दिस कोर्स हैज बीन ऑलरेडी लॉन्च्ड, सो you and this is the best time you can enroll in our online course. Okay, that is more about our course. We conduct 4 to 5 classes per week और these are the live classes. and जो आपका सिलेबस कवर हो जाएगा वो आपके फेब और मार्च के अंदर आप सिलेबस कवर हो जाएगा. उसके बाद क्या करेंगे सर हम, जब तक आपका एग्जाम नहीं होता तो तब तक वी विल बी हैविंग अ रिवीजन क्लासेस. हर एक टॉपिक के आपके पास रिवीजन क्लासेस मिलेंगी. वी विल बी सॉल्विंग द PYQs. आपको जो मॉक टेस्ट हमने दिए होंगे वी विल बी लाइव सॉल्विंग देम इन फ्रंट ऑफ यू एंड वी विल बी जस्ट डिस्कसिंग द स्ट्रेटजीज फॉर द सॉल्विंग. उसको कैसे सॉल्व करना है, व्हाट शुड बी योर अप्रोच, है ना. तो ये सब आपका रिवीजन क्लास में कवर हो जाएगा. एंड वीकली मॉक टेस्ट विल ऑल्सो बी कंडक्टेड. जो भी हमने वीक में क्लासेस ली हैं, जो भी हमने टॉपिक कवर किए हैं उनके बेस पे भी वी विल बी हैविंग द वीकली मॉक टेस्ट. उन्हीं टॉपिक से आपसे क्वेश्चन आएंगे और यू कैन जस्ट have a track on how your preparation is going on.
डेली क्विजेज आर अवेलेबल इन आर टेलीग्राम ग्रुप। तो आपको डिस्क्रिप्शन में आपको सभी लिंक्स मिल जाएंगे, आपके टेलीग्राम ग्रुप के भी, ठीक है, आपके बुक्स के भी, आपके कोर्स जहाँ से परचेज करना है आपको, पूरा वेबसाइट का भी आपको लिंक मिल जाएगा। देन रेगुलर ग्रुप डिस्कशंस विल बी डन इन आवर व्हाट्सएप मास्टर ग्रुप। सो व्हाट इज दिस व्हाट्सएप मास्टर ग्रुप? तो अगर आप हमारा ऑनलाइन कोर्स लोगे तो उसमें व्हेन यू विल परचेज आवर कोर्स देन यू विल बी एडिंग टू दिस व्हाट्सएप मास्टर ग्रुप, जिसमें कि आपको रेगुलर यू विल बी हैविंग द ग्रुप डिस्कशंस, आपके जो भी डाउट्स हैं यू कैन जस्ट गेट इट क्लियर फ्रॉम देयर। ओके, तो आपको एक मास्टर ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, जहां आपकी ही तरह और भी जो एग्रोनॉमी के स्टूडेंट्स हैं प्रिपेयर कर रहे हैं विच हैव परचेज आवर कोर्स आर अवेलेबल एंड यू कैन जस्ट ट्रैक योर प्रिपरेशन। Now our application features. So our application is the AgriEdit. This is available in the Play Store. और अगर आप कोई भी यूज़र हो, PC यूज़र, लैपटॉप यूज़र, मोबाइल यूज़र, टैबलेट, iOS, आपके पास कुछ भी iPad, तो हमारी एप्लीकेशन सपोर्ट्स एवरी प्लेटफॉर्म। ओके, सो इन आवर एप्लीकेशन जो आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे उनको आप ऑफलाइन डाउनलोड कर सकते हो और आप उसमें अपने ऐप में ही देख सकते हो। स्टडी मटेरियल्स आर एक्सेसिबल विद इन योर एप्लीकेशन and this is supports all your devices, ठीक है। Then next, this is our course which we are talking of. So that for the 2025 aspirants we are having the Shrestha Agronomy Target Batch for your ICAR PG Agronomy, okay, and this batch validity is up to your exam, that is 2025 exam, okay। एंड एनरोल लर्नर जो भी इसमें एनरोल करेंगे तो उनको 2024 का जो रिकॉर्डेड कोर्स है वो भी मिलेगा और 2025 का लाइव कोर्स वो भी आपको मिलेगा। तो अगर कोई 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहा है तो जो हमने 2024 में कोर्स लॉन्च किया था उसके भी आपको सारे वीडियोस है ना वो आपको असेसिबल होंगे, यू कैन जस्ट वॉच और आप उनसे अर्ली प्रिपेयर भी कर सकते हो। और अगर आपकी लेट से अगर आपकी आज प्रॉब्लम सॉल्व की क्लास है तो आप पिछले कोर्स से एक बार उसको पढ़ के देन आज आप उसकी क्लास लगा सकते हो, ठीक है। तो इट विल बी डबल बेनिफिट फॉर यू गाइस। इन दिस यू विल बी गेटिंग द लाइव प्लस रिकॉर्डेड कोर्स एंड दिस इज द कंसाइज स्टडी मटेरियल जो आपको हम प्रोवाइड करेंगे एंड द बेस्ट, बिकॉज हमारा स्टडी मटेरियल क्या होता है, वी आर नॉट रेफरिंग अ सिंगल सोर्स और सिंगल बुक। जो भी आपकी बुक्स अवेलेबल हैं ऑथेंटिक बुक्स, ठीक है, उनसे 2-3 बुक्स वी आर जस्ट रेफरिंग एंड उनका जो मटेरियल है आपको बेस्ट मटेरियल हम कंसाइज करके कंपाइल करके आपको प्रोवाइड करते हैं। सो आपको आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। दिस इज अ वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर यू गाइस, ओके। यू विल बी ऑल्सो गेटिंग दिस स्टैंडर्ड मॉक टेस्ट सीरीज, क्रिस्प एंड शॉर्ट नोट्स मिलेंगे बिकॉज वी नो दैट योर टाइम इज़ वेरी वैल्यूएबल। तो इसमें आपको बेस्ट स्टडी मटेरियल आपको जो हम दे सकते हैं इसके अंदर वी आर गिविंग इट। Now previous year paper discussions are also there because you all know that PYQs analysis is very much important for the course, ठीक है, for your exam। तो PYQs analyze किए बिना अगर आप एग्जाम दोगे then you will just wash out। Then you will be getting the 1-to-1 doubt clearing sessions। जो भी आपका डाउट होता है तो हमारे पास हमारे एप्लीकेशन में भी there is a community tab, you can just ask your doubt, you can just ask your doubt in your master group also। our AgriEdit team is there to assist you। Then for the 2026 students, the students who are aspiring for 2026, we are having the Samartha batch। See, Shrestha batch is for 2025, जो आपका इस साल जो एग्जाम होगा 2026 में we are having Samartha batch। 26 में what you are getting 2024 का रिकॉर्डेड कोर्स आपको मिलेगा, 25 का लाइव कोर्स भी आपको एक्सेसिबल होगा और 2026 में जो हम टारगेट बैच लॉन्च करेंगे उसका एसएस भी आपको सिंगल आपको इस कोर्स में मिलेगा। तो कोई अगर पहले से आपको जो सेकंड ईयर से कोई तैयारी कर रहा है, थर्ड से कर रहा है, राइट फ्रॉम द फर्स्ट ईयर हु इज प्रिपेयरिंग, तो आपको समर्था बैच जो है आई वुड रेदर सजेस्ट वो ले सकता है। इसकी वैलिडिटी आपको 2026 तक मिलेगी, ओके। एंड दिस इज योर फाउंडेशन बैच दैट आपको प्रीवियस वन आपका टारगेट बैच है, ये आपका फाउंडेशन बैच है। यहाँ एकदम बेसिक्स होता है एग्रोनॉमी, वहाँ से स्टार्ट करते हैं। ऑल्दो टारगेट में भी वी आर रेफरिंग वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द बेसिक्स, so that is not the issue। इसमें भी आपको सेम लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस, your best study materials we are providing, also doubt clearing sessions। So to get enrolled in these courses you can just visit our website or you can just enroll from this AgriEdit, okay। And at the last, as I promised, I will just get you one coupon code जिससे कि आप मैक्सिमम डिस्काउंट जो है अवेलेबल जो आप अवेल उसको कर सकते हो। Then this is about the mock test bundle। तो mock test bundle इसकी वैलिडिटी आपकी
राइट फ्रॉम ए परचेज इट इज़ 365 days। और जो आपके मॉक टेस्ट हैं डेट विल बी ऑफ द बेस्ट क्वालिटी। आपके ऑल जो आपकी जिस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्टेटमेंट वाइज असर्शन रीजन, उसी टाइप के मॉक टेस्ट वी हैव जस्ट प्रोवाइडेड टू यू, इन विच यू विल बी गेटिंग 50+ मॉक टेस्ट। और इसमें आपके टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज, होल सिलेबस, जनरल एग्रीकल्चर टेस्ट भी होंगे। और इनकी हम लास्ट में, अगर आप ऑनलाइन मास्टर कोर्स लोगे तो उसमें हम इसकी डिस्कशन भी करेंगे। देन डाउट सॉल्विंग बाय द मेंटर्स, इफ यू फेस एनी डाउट, your doubt will be resolved by your best mentors. Okay, so this is our the course outline. This is a brief outline. ये आपका एक तरीके से लेक्चर फ्लो है जो कैसे कैसे चलेगा क्लासेस। तो फर्स्ट जैसे आपकी क्लासेस वाटर मैनेजमेंट से स्टार्ट होंगी, ठीक है, तो ये आपकी ऑलरेडी स्टार्टेड हैं और ये कुछ इससे क्लासेस जो है मैक्सिमम कंप्लीटेड भी हैं, लेकिन रिवीजन भी हम इसमें करेंगे। और ये सारी क्लासेस आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में भी मिली होंगी, तो यू कैन अभी भी आप उसको एनरोल कर सकते हो, एंड दिस इज़ द बेस्ट टाइम आई कैन रेदर से। ओके, जैसे मेंटर्स नेम है यहाँ लिस्टेड, आपको शेड्यूल प्रॉपर मिल जाएगा आपके मास्टर ग्रुप में, ताकि आपको पता लग सके, यू नो, मंथली शेड्यूल यू विल बी प्रोवाइडिंग। तो उससे आपको पता लग जाएगा कि आपकी कब किस दिन कौन सी क्लास है, तो यू कैन प्रिपेयर अर्ली। ओके, दिस इज़ नॉट, यू नो, फुल कोर्स आउटलाइन, और भी हमारे पास टॉपिक्स हैं, इधर स्पेस नहीं थी तो आई हैव लिस्टेड सम ऑफ देम। सो दिस विल बी योर लेक्चर फ्लो, यू कैन जस्ट सी, लाइक यू कैन ऑल्सो सी न्यूमेरिकल्स के भी वी हैव डेडिकेटेड 7 lectures। I think no institute just provided 7 lecture for just numericals। ठीक है, numericals 1-2 lecture में कवर करके कंप्लीट कर देते हैं, but we have dedicated sessions for this। Okay, this you can see the interface our course। If you purchase our course, your mentor is teaching, and this is interface। The classes will be in your Zoom। तो Zoom application you have to download। तो क्लासेस से पहले आपको जूम का लिंक आ जाएगा, यू कैन जस्ट वॉच द क्लास एंड क्लासेस विल बी इंटरेक्टिव, सो यू कैन आस्क एनी डाउट एंड ऑल्सो बी इंटरेक्टिव इन द क्लास। ठीक है, यू विल बी प्रोवाइडिंग विद द बेस्ट स्टडी मटेरियल्स, दीज आर द स्टडी मटेरियल्स। नाउ मॉक टेस्ट, टोटल 50 मॉक टेस्ट विल बी प्रोवाइडिंग, एंड दीज विल बी ऑफ द बेस्ट क्वालिटी। दिस इज द मॉक टेस्ट इंटरफेस। सी, मॉक टेस्ट का जो आप ट्रेंड है वो आपको कंप्यूटर में आपको मॉक टेस्ट सॉल्व करने होंगे, बिकॉज पेपर आपका कंप्यूटर में हो रहा है, तो पेन पेपर से तो कोई मतलब नहीं है। तो उसके लिए आपका हमने एक डेडिकेटेड मॉक टेस्ट इंटरफेस बनाया है, डेट इज़ सिमिलर लाइक योर एक्चुअल जो आप एग्ज़ाम देते हो उसके इंटरफेस से सिमिलर है। तो दिस इज़ योर सिमिलर इंटरफेस, यू कैन जस्ट सी, एंड दीज आर द प्रीवियस ईयर पेपर। तो अगर आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स इसके चाहिए होंगे, यू कैन जस्ट go to our website also, link is provided in the description for the previous years also, you can just refer from here। ठीक है, और आप उस वेबसाइट में जाके खुद चेक भी कर सकते हैं। Then this is our the master course we have discussed like Shrestha for the agronomy, और यह इसकी अभी प्राइसिंग चली है 2999 इंक्लूडिंग 18% GST। ठीक है, तो इसका जो आपको अगर करंट प्राइस देखना होगा तो आप वेबसाइट में जाके वहाँ चेक कर सकते हो, बिकॉज यू नो प्राइस आर फ्लैक्चुएटिंग, बिकॉज आवर मेंटर्स जो कुछ जा रहे हैं कुछ आ रहे हैं, तो उससे प्राइस थोड़े फ्लक्चुएट हो सकते हैं। तो अगर आपको यू नो बेस्ट प्राइस देखना है तो वेबसाइट में जाके आप इसको चेक कर सकते हैं, लिंक इज़ प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन। ओके, देन दिस इज़ द समर्था एंड दिस इज़ द मॉक टेस्ट बंडल। ठीक है, तो मॉक टेस्ट बंडल में आपका 499 का मॉक टेस्ट बंडल है, यू कैन जस्ट परचेज। और जिन्होंने अगर मास्टर कोर्स लिया है तो उनको मॉक टेस्ट बंडल परचेज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मॉक टेस्ट आपको उसी में इंक्लूडेड मिलेगा। लेट मी क्लियर इट अनदर टाइम। ओके, सो नाउ हियर्स कम्स योर स्पेशल पार्ट ऑफ दिस वीडियो। तो अगर आपको ये ऑनलाइन मास्टर कोर्स यू वांट टू परचेज, तो इफ़ यू वांट मैक्सिमम डिस्काउंट यू कैन यूज़ माय कूपन कोड, दैट इज़ निखिल 600। ठीक है, ये कूपन कोड जब आप ऑनलाइन हमारा कोर्स परचेज कर रहे होंगे, देयर विल बी ए सेक्शन फॉर दिस एडिंग कूपन कोड, यू विल जस्ट ऐड दिस निखिल 600 एंड यू विल बी, जो आपका प्राइस है वो कम हो जाएगा एंड यू विल बी गेटिंग द मैक्सिमम डिस्काउंट। सो डोंट फॉरगेट टू यूज दिस कूपन कोड निखिल 600। ओके, so I think I have covered almost all of the things which are required for your preparation, and I think that is you know, a single video we have discussed all about our exam pattern, to the strategy we can follow, and also what Agrietics provided you. You can just enroll in our course also. So thank you for this session, and if you have any doubt regarding this today's session, you can just drop down your comment in the comment section. We, the team of Agrietics, will happy to assist you
So thank you very much. Have a wonderful day. Thank you.